I'll introduce myself first. I am Mukul. I have been working with Neuron for 2 years now, and I am an NLP and parallelism researcher. Now, this is exactly as the title say, introduction. I am not expecting you to know anything. So if you have no idea about machine learning, good. It's good to start with a clean state. Now, how many of you are from college here? So, how many of you are in first or second year? Nice. How many are from fourth year? How many of you are from third or fourth year? So, how many of you have a vague idea about what is AI? Okay. What is ML, machine learning? Okay. So, what is AI? Anyone? या गलत आंसर देने गलत आंसर दो, बिल्कुल वाहियात आंसर तो अच्छी बात है. सोफिस्टिकेटेड बुक वाले आंसर सुनने भी नहीं है. Anyone, what is AI? Like basically building something, a program or technology which will be able to work just like humans. I mean that's general idea. Everything can work. Giving machine the capacity to think. It's replicating human brain into a machine as close as possible. Making a machine self-dependent. Independent, self-dependent. Okay. Correct. अच्छा. So, someone said thinking. What is thinking? Define thinking. हम सोचते हैं, क्या करते हैं basically? Basically taking inputs from your senses and just deciding and acting on a logical set of actions. Predefined human. सही है. और ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरे को जानना है कि आप लोग कितने लेवल के अंडरस्टैंडिंग है, ताकि मैं उस लेवल पे समझाऊं. तो चुप रहोगे, मुझे आइडिया नहीं होगा, मैं assumption लेके चलूंगा और फिर फायदा नहीं होगा, बिकॉज मैं अपनी नॉलेज फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं खड़ा, मैं आपको समझाने के लिए खड़ा हूँ. तो मेरे को पता होना चाहिए कि आपको कितना आता है और कितना समझाना है. ठीक है ना? तो प्लीज इसको इंटरैक्टिव रखो. नहीं तो स्लाइड्स तो मैं घर पे भी दे सकता था, तुम चेक कर सकते हो. ओके, सो these are some rules of ML, and the first rule is not for ML only, it's for life. Ask the stupidest questions. I'll give an example. So one of the leading algorithms nowadays is Earth Mover algorithm. यार 1970 में किसने डिस्टेंस के लिए निकाला था वो एल्गोरिथम? किसी ने ऐसे ही बैठा होगा, वेला उसने लगा दिया, काम कर गया. जो चीज लोगों ने करी है वही करना है, तो हार्ड कोड करके प्रोग्राम कर लो, उसमें AI का कोई फायदा नहीं है. AI is supposed to solve something that people thought was funny, कि ये होनी नहीं है भाई. तो the whole point is ask stupidest questions. It's okay to ask stupid questions. Second is, okay, a lot of times you would come across something and you would be like, this is so easy. Then why hasn't someone implemented it? And then you might think it can't be possible that I would be the first person to come up with. So you'll leave it. You'll be like, नहीं यार छोड़ो, कुछ नहीं होता यार. थर्ड पॉइंट वही है, गेस तुम मत करो, तुम इम्प्लीमेंट करो. तुम्हारे AI के एल्गोरिथम का काम ही गेस करना होता है. गेस उसको करने दो. तुम्हें गेस कर रहे हो तो उसको क्यों बना रहे हो? Then fourth point. So how is ML different from other fields? See, other fields are confined to the domain knowledge, but in ML you try to automate the domain knowledge of different domains. If it's bio, like neural network is based on biology. Information theory, जो भी vectorization करते हो वो सारी information theory में होती है. जो कितना लर्निंग रेट आना चाहिए, क्या होता है न्यूरल नेटवर्क्स में, वो सारा फिजिक्स के मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है. सो नॉलेज, एक जनरल नॉलेज भी बहुत होनी चाहिए,
क्योंकि एक डोमेन इसमें बहुत, मशीन लर्निंग एक ऐसी स्पेशल फील्ड है जहां तुम डोमेन नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हो एक फील्ड से दूसरी फील्ड के लिए। तुम बायोलॉजी की डिटेक्शन के लिए जो तुम सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए लॉसलेस कंप्रेशन यूज करते हो वो भी तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर ये रहता है हर डोमेन की नॉलेज, और सही है यार ये चीज। और लास्ट पॉइंट है विजुअलाइज। अब मशीन लर्निंग के अंदर एक चीज होती है, हम ह्यूमंस 3D के अंदर जीते हैं, मैक्सिमम 4D इमेजिन कर सकते हैं, बट मशीन लर्निंग के अंदर 500D 600D 10,000D होता है। अब ह्यूमन ब्रेन नहीं इंटरप्रेट कर सकता उसको, तो हम क्या करते हैं, हमने assumptions लेके चलते हैं। नहीं, कोई assumptions नहीं। थर्ड पॉइंट है, कोई assumptions नहीं। हर चीज को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज मतलब क्या, ग्राफ्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, एक्चुअली में देखो कि हो क्या रहा है। मैं तुमको कहा कि लॉस जो है वो 3.4 है। 3.4 क्या, किसी को नहीं पता। 4 आइटरेशन के बाद वो 3.3 हो गया, क्या हुआ किसी को नहीं पता। हर स्टेप पे अगर तुम उसका ग्राफ देख रहे हो तो तुमको एक्चुअल में आइडिया हो रहा है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या मतलब बीच में एकदम से डिप लेके आए हो। तो हर चीज को विजुअलाइज करो, बिकॉज तुमको इंटरनल वर्किंग से समझ आएगी कि एग्जैक्टली लर्नर कर क्या रहा है। नहीं तो तुम्हारे लिए ब्लैक बॉक्स होगा, कुछ गया कुछ बाहर आया, क्या गया क्या आ रहा है कुछ नहीं आइडिया होगा। तो मशीन लर्निंग क्या बहुत मुश्किल है, रॉकेट साइंस है? नहीं यार, आसान है, रॉकेट साइंस में यूज होती है। तो लोगों को इतना डर क्यों लगता है अगर आसान है तो? क्योंकि हमने दिमाग में assumption ली हुई है कि यार बहुत मुश्किल है, और वो assumption क्यों ली है, ऑटोमेट होती है चीजें। दिमाग को करना, दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है, दिमाग की थिंकिंग भी बहुत हाई है। हमारे लर्नर्स 5 साल के बच्चे से ज्यादा टफर होते हैं। तो आसान है, मतलब समरी बस ये दूंगा। सो मशीन लर्निंग है क्या? मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है डिसीजन लेना, गैस करना, पर वेटेड गैस करना। वेटेड गैस क्या होता है? 2 तरह की गैस होती है। एक, मुझसे तुमने पूछा उस आदमी की एज क्या है, मैंने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी, 50। क्यों 50? ऐसे, कोई वेट नहीं है, कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, तो उसको हम कहते हैं रैंडम गैस या अनवेटेड गैस। एक होता है तुम आदमी को देखते हो, तुमको एक्चुअली उसकी अभी भी एज नहीं पता, तुम उसको देखते हो उसके बाल का कलर क्या है, कितना सीधा खड़ा है, किस आवाज में बोल रहा है, कितने रिंकल्स हैं, तुम वो सब फीचर्स देखते हो उसके, और उस फीचर्स के बेसिस पे तुम गैस मारते हो। अब ये गैस तुम्हारी ना ही सिर्फ और एक्यूरेट होगी, बट इसके पीछे कोई लॉजिक होगा जिसको तुम आगे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये वेटेड गैस जो होता है, वेट लेके कोई रीजन लॉजिक लेके गैस करना, अगर मेरे पास कल कोई और आदमी आता है तो इसकी गैस बिल्कुल अलग होगी। तो ये इंटेलिजेंस होती है कि डायनामिकली अपने आप को एडॉप्ट करना एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब न्यूरल नेटवर्क तो सबने सुना होगा, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, और बड़ा लगता है न्यूरल नेटवर्क बहुत बड़ा हुआ है, 3-4 स्लाइड बाद ही आएगा। अगर मैं 2 लाइन में उसको बोलना चाहूँ, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। बस कॉलेज के सेकेंड ईयर तक तुम हो ना जाकर, बस तुमने वो पार्शियल डेरिवेटिव तो पता ही होगा क्या है, तो उससे तो है नहीं कुछ न्यूरल नेटवर्क। लोग लंबी लंबी कहानियां करते हैं, बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान है। तो हम एमएल यूज क्यों करते हैं? मतलब अभी मैंने कहा 5 साल के बच्चे से डफर है, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं फिर उसको, हम ह्यूमन को क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि इंटेलिजेंट एनफ है। मतलब मुझे सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, वो सेंटीमेंट समझ पा रहा है, उसको 10,000 चीजें और इंसान जो कर सकता है वो नहीं कर सकता वो, पर वो एक काम कर पा रहा है ठीक ठाक। और वो ठीक ठाक के लिए हम क्यों रुके? हम ठीक ठाक के लिए इसलिए रुकते हैं क्योंकि एक ह्यूमन अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी में अपर बाउंड्स में होता है, एक बाउंड के ऊपर वो नहीं जा सकता। आप एक सिंपल सुनो, मैंने फेसबुक पेज बनाया है, उसके ऊपर मैंने कोई डाला और लोग कमेंट कर रहे हैं, अब 10 लाख 20 लाख कमेंट आ रहे हैं, और मेरे को एक दिन में बताने कि मैं कल क्या पोस्ट करूं।
अब या तो मैं 1000 बंदा करूंगा, उनको बोलूंगा पहले 1000 तू पढ़, पहले 1000 बाकी 1000 तू, बाकी 1000 तू, उससे मैं ना फालतू के लोग हायर कर रहा हूँ, लोग के बीच में झगड़े हैं, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, कोई सो गया है, जो भी चल रहा है। पर बात है एक लिमिटेशन है, और फिजिबिलिटी मेरी एक लिमिटेशन के ऊपर खत्म हो रही है। मेरी कंपनी का इतने पैसे नहीं है कि मैं 1 लाख बंदे को हायर कर लूं, बट मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है। मतलब एक मशीन लर्निंग कोड मेरे ख्याल से 5 मिलियन, मेरे कोड जो है वो 5 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल करते हैं। तो मेरे को 2 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से 1 बिलियन रिक्वेस्ट का मैं आंसर दे सकता हूँ। मुझे कोई लोग हायर नहीं करने, मेरी सारे पैसे बच रहे हैं। मशीन लर्निंग इधर यूज होती है स्केलेबिलिटी में। स्केलेबिलिटी इन द सेंस आप बिना पैसे, बिल्कुल कम पैसे से आप कितनी बड़ी चीजें कर सकते हो। आज से पहले कंप्यूटर्स बहुत बेकार थे, तो कंप्यूटेशन इतनी होती नहीं थी, तो उधर मशीन लर्निंग होती थी कि यार क्या करना है, न्यूरल नेट वो 4 दिन तो लग रहे हैं, इधर 4 बंदे बैठा लो, इधर 4 सेकंड भी नहीं लग रहे, उसको 4 नैनो सेकंड लग रहे हैं। इसलिए मशीन लर्निंग अब लोग बहुत शुरू कर रहे हैं। और उसका एक और बड़ा अच्छा फायदा है, जो लास्ट पॉइंट है, हिडन पैटर्न्स। फीचर इंजीनियरिंग तुमने सुना होगा क्या होता है, चीजों के फीचर निकालना। फीचर इंजीनियरिंग डेड हो गई है। क्यों डेड हो गई है? डेड नहीं करूं बट क्यों अब वो मेन स्ट्रीम में यूज नहीं हो रही है? इसलिए क्योंकि हम एज अ ह्यूमन एक चीज के 10 पैटर्न निकाल सकते हैं, 20 पैटर्न निकाल सकते हैं, बट अननोइंगली चाहे एक लैंग्वेज हो, हम लैंग्वेज में 4 ग्रामर रूल कर रहे हैं, पर वो ग्रामर रूल से एंड में क्या बन रहा है वो हम भी अंदर गेस नहीं कर सकते। हम लेके चलते 4 ग्रामर रूल बनाए और ये है, वो 4 ग्रामर रूल में लेकिन हजारों पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं, और हजारों पैटर्न्स को हम इग्नोर करते हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग लिमिटेशन कर देती है उन 4 के अंदर ही। जबकि जो न्यूरल नेटवर्क है फेमस इसलिए हुआ क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, इनपुट देनी है, वो पैटर्न्स खुद निकालेगा। और उससे फायदा क्या हुआ, एक 20 40 लाख पैटर्न वो ढूंढ पा रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है। एक सिंगल टास्क में एक्यूरेट है, पर काफी एक्यूरेट है। मैं शुरू में बोला था मशीन लर्निंग मैंने क्यों शुरू करी, मतलब ठीक है लोग तो करते हैं, मैंने क्यों शुरू करी? बिकॉज कुछ अलग करना था, सिंपल सा बोलूं, मतलब टीसीएस में जाके नहीं करना था। तो सिंपल पॉइंट अगर बोलूं तो आई लव जीके, आई लव टू नो थिंग्स, and this is the best way to know and implement things, best field. And I'll quote Donald Knuth here, जानते ही होंगे इसको। This is an amazing quote. If people already know about it, it's obsolete. मतलब it's already time to move on. अगर Apple की एड में आ गया कि RN के LSTM यूज होता है, भाई बेकार हो गया, फेंको इसको, कोई नई चीज बना दे। So what can it do? मतलब हम डे लाइफ में बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग के आसपास आते हैं, हम रियलाइज नहीं करते क्या करती है मशीन लर्निंग। वेल जब ई कॉमर्स साइट पे जाते हो तो एक रेलेवेंट करके ऑप्शन आता है, अगर उसको हटा दूं ना तो जो आगे आएंगे ना सारे के सारे चॉइसेस, वो होगी 50 लाख चॉइसेस, और उसमें से पहली 10 लाख खराब हो सकती है। वो 10 लाख को स्क्रॉल करते करते तुम साइड बंद कर दोगे, दुकान से जाके ले आओगे। टिंडर, बस इतना काफी है। नेटफ्लिक्स मूड डिटेक्ट करता है तुम्हारा, कि तुम्हारे समय मूड क्या होगा, तुम रात किस तरह की मूवी देखते हो, कौन से जॉनर देखते हो, कब कौन से जॉनर देखते हो, दिन में, या तुम्हारा पूरा दिन मूड क्या रहा है तो तुम्हारा अब क्या मूड होगा। बेस्ट गूगल, यार गूगल ना होता ना अभी तक मैं याहू पे सर्च करते करते बुढ़ा हो जाता है। मतलब मैं फर्स्ट ईयर का भी असाइनमेंट सर्च कर रहा होता। तो गूगल क्या करता है बेसिकली, गूगल सबसे रेलेवेंट, कहते तो है इफ यू वांट टू हाइड समथिंग द बेस्ट प्लेस टू हाइड इज ऑन पेज 2 ऑफ गूगल। ये पेज 1 पे सारे आंसर मिल जाते हैं। उसका रीजन क्या है, एमएल। आउट ऑफ 50 बिलियन 100 बिलियन लिटरली 100 बिलियन डॉक्यूमेंट्स वो तुमको एक पेज देता है और सबसे रेलेवेंट पेज देता है। मशीन लर्निंग, नथिंग एल्स कुड हैव एवर मेड इट पॉसिबल। मेडिकल फील्ड में बहुत अल्टीमेट यूज है इसका।
कुछ बीमारियां होती है जो जेनेटिकली तुम्हारा जीन्स का स्ट्रक्चर चेंज करती है और एक लिमिट के बाद वो इनक्योरेबल हो जाती है और उस लिमिट के बाद ही तुम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हो। उस लिमिट से पहले डिटेक्ट नहीं हो सकती वो, और तुम्हारे जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, सब में वो नेगेटिव आता है। मशीन लर्निंग क्या करता है? मशीन लर्निंग अभी से पहले आया था, पैटर्न्स ढूंढते हैं चीजों के अंदर। अब क्या है, अभी इशू क्या है, हर एक का डीएनए अलग है, हर एक का जीनोम अलग है, तो जीनोम में मॉडिफिकेशन भी अलग है, पर पैटर्न एक है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, पर पैटर्न है, क्योंकि एंड में आके वो एक ही चीज पे जा रहा है। तो अगर वो पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं तो उस डिजीज को इससे पहले कि वो इनक्योरेबल बने, हम उधर ही रोक सकते हैं। ये फील्ड्स हैं, मैं नाम भी लेना शुरू करूंगा, इनके अंदर यूज होता है, बेसिकली हर जगह यूज होता है। टाइप्स, 4 बेसिक टाइप्स होते हैं: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रिइंफोर्समेंट। सुपरवाइज क्या होता है? अच्छा देख नहीं रहा आगे। बेसिकली सुपरवाइज होता है जहां तुम्हारे पास सही आंसर होता है और तुम उस सही आंसर से एक्सपीरियंस लेते हो, और एक्सपीरियंस लेके फिर तुम फ्यूचर में उस एक्सपीरियंस को यूज करते हो। जैसे कि एक बच्चा भाग रहा है कुत्ते की तरह, अपने पापा की तरह, उसकी मॉम का रिएक्शन है स्माइलिंग, तो वो गेस करता है कि ये अच्छी चीज है, कुत्ते की तरह कुत्ते की तरह भाग रहा है, तो उसको क्या सीखता है कि वो गलत चीज है। अब ये 4 इंसिडेंट तुम्हारे एक्सपीरियंस हो गए। अब 5वीं बार जब तुम्हारी मॉम उधर नहीं होती है, तुम भालू की तरह भाग रहे हो, तो तुम पहले ही गेस कर सकते हो गलत है। तो ये ट्रेनिंग सेट बोलते हैं इसको। ये रिक्वायरमेंट होती है तुम्हारी सुपरवाइज लर्नर की। सुपरवाइज का मतलब क्या हो? सुपरविजन के अंदर, मतलब गाइडेंस के अंदर। तो तेरे पास पहले ही तेरी मॉम की गाइडेंस है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। लर्निंग हमारा पहले से ही है। हाँ, ट्रेनिंग सेट है। सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में जब कोई लर्निंग नहीं थी तो तू एक्सपीरियंस पुराना यूज करके निकाल रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है? तूने 1000 पैटर्न्स देख लिए, 1001वें पैटर्न के लिए अब तू गेस कर सकता है कि क्या है। मतलब इन स्टार्टिंग में मॉम्स रिएक्शन भी है और लर्निंग भी है। मॉम्स रिएक्शन से ही तो लर्निंग हो रही है। ओके, मैं सिर्फ एक्शन और मॉम्स रिएक्शन। हाँ, ठीक है ना। अनसुपरवाइज्ड क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड होता है मुझे कुछ नहीं पता डेटा के बारे में, उधर तो मेरे पास कोई बताने के लिए था ना, इधर कोई नहीं है, इधर मुझे कुछ आइडिया नहीं डेटा के बारे में। मेरा ये डेटा है, क्या करूं मैं इसका भाई, क्या है ये? तो हम अनसुपरवाइज करते हैं। वो क्या करता है, वो इन दोनों डॉट्स के बीच में देखता है क्या क्या सिमिलर है, इन दोनों डॉट्स के बीच में देखता है क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है, और उनके बेसिस पे उसको क्लस्टर करता है। क्लस्टर करना क्या होता है? पेयरिंग करना। वो पेयर बनाता है, कहते हैं ये इससे ज्यादा सेंस बनता है तो मैं इनको पास रखता हूँ, मैं इसको इसके पास ले आता हूँ, ये और इसका सेंस बनता है तो मैं इसको इसके पास ले आता हूँ। तो उसका एंड रिजल्ट वैसा होता है। कंट्री, अब क्या तुम्हारे पास सेंटेंसेस थे जहां ये वर्ड्स यूज हुए थे, इंडिया, बीजिंग वगैरह। तो चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सेम कंटेक्स्ट में यूज होंगे, जो है कंट्री का कंटेक्स्ट। अगर मैं चाइना और उस सेंटेंस में चाइना और बीजिंग, चाइना और इंडिया हटा दूं और मैं कंट्री वर्ड लिखूं तो उसका सेंस बनेगा। तो उनका कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में वो यूज हो रहे हैं वो ऐसा कंट्री है। सेम गोस फॉर बीजिंग एंड महाराष्ट्र, वो दोनों भी एज अ प्लेस यूज होते हैं। अब इधर लैंग्वेजेस थी उनकी, अब ये दोनों क्लस्टर इतने पास क्यों है, ये क्लस्टर इतना दूर क्यों है, ये इतना क्लस्टर दूर क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों में जगहें हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जहां कंट्री का यूज केस और स्टेट का यूज केस सेम था। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू इंडिया। इस केस में तुम कंट्री से भी रिप्लेस कर सकते हो और स्टेट से भी रिप्लेस करते हो एंड इट वुड मेक कंप्लीट सेंस। तो ओवरलैपिंग यूज केसेस थे इनके, इसलिए इनका क्लस्टर बहुत पास आया। अब लैंग्वेज और चाइना के अंदर ये नहीं होगा, मैं मैंडरिन जा रहा हूँ नहीं कोई सेंस बनेगा, मैं इंडिया जा रहा हूँ चाइना जा रहा हूँ का सेंस बनेगा। तो इनके जो सेंटेंसेस थे उनकी सिमिलैरिटी बहुत अलग थी।
मेरे को चाहिए कि यार मेरे को लिटरली अलग अलग सब चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कि वो ओवरलैपिंग हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल क्लीन स्टेट से स्टार्ट नहीं करता, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसको पहले ही दे देता हूँ। वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं 2 सेंट्रॉइड डिफाइन कर देता हूँ। सेंट्रॉइड मतलब इसके आसपास तुम निकालो कि इनसे सिमिलर कौन से। पहले तो वो रैंडमली पॉइंट सिलेक्ट करके बोल रहा था इसके सिमिलर इसके सिमिलर इसके सिमिलर कौन से हैं। इस बार हमने पॉइंट डिफाइन कर दिए कि ये इसके आसपास के तुम सिमिलर निकालो। तो भी वो क्लस्टरिंग कर रहा है, अभी भी लिटरली सेम चीज कर रहा है, पर अब रैंडमली सिलेक्ट करने की जगह वो हमारे प्री डिफाइंड चीज के ऊपर सिलेक्ट कर रहा है। तो ये सेमी सुपरवाइज्ड होगा, जहां हमने उसको थोड़ी हिंट दी, हमने बीजिंग का बता दिया कि कंट्री है, सॉरी चाइना का आगे कंट्री है, बीजिंग का बता दिया स्टेट है, उल्टा बता दिया, बट बाकियों का नहीं बताया था। तो बाकियों का उसने सिमिलैरिटी देखी कि कंटेक्स्ट की सिमिलैरिटी कितनी थी, और उसके बेसिस पे उसने क्लस्टर कर दिया। तो इसमें हमने थोड़ों का बताया और ज्यादातर का नहीं बताया। ये सेमी सुपरवाइज्ड होता है, हम गाइडेंस दे रहे हो पर बहुत लिमिटेड गाइडेंस दे रहे हो। ये सबसे इंटरेस्टिंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये उस हाइपर एक्टिव बच्चे की तरह जिसको तुम मेज में फेंक देते हो और बोलते हो भाग, वो 4 बार दीवार से टकराता है, फिर उसको समझ आता है नहीं भाई दीवार से नहीं टकराना। तो समझ लो तुम्हारा ये वीक में एग्जाम्स चल रहे हैं और तुम क्या पहले दिन पूरा सोचते हो कि भाई सोता हूँ मार्क्स तो आ जाएंगे, नहीं आते मार्क्स। दूसरे दिन बोलते नहीं भाई अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, तुम पूरा दिन पढ़ते रहते हो। पर फिर होता है यार ट्राई करता हूँ थोड़ा पढ़ के थोड़ा ना पढ़ के, बेटर रिजल्ट आ गया। अब ये करते करते खुराफाती दिमाग है तुम्हारा, तुम कहते हो खेल ले लेता हूँ थोड़ा और बेटर रिजल्ट आ गया। अब हो सकता था इससे और बेटर रिजल्ट ना आए, बेकार आ जाता। इसका एक्सप्लोरेशन कहते हैं। एक्सप्लोरेशन मतलब तुम बिना किसी सेंस के तुम एक एक्शन लेते हो। अब सपोज का कोई सीन नहीं बनता था एग्जाम के दिनों पे, ट्राई कर लेते हैं। अब इसका रिजल्ट गंदा आता, तुम्हारा 90 से अगर 85 पहुंच जाता है या 80 पहुंच जाता, तुम कहते नहीं भाई ये स्पोर्ट्स गलत है, स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, ये इसी पे स्टिक करो। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में तुम्हारे पास एंड गोल नहीं पता होता। तुम्हारा एंड गोल क्या है इस पूरे के अंदर? सीजीपीए बढ़ाना। तुम्हारा सीजीपीए कहीं नहीं आ रहा है इसके अंदर, पर तुमको एक सीजीपीए वाले पूरे सेमेस्टर को तुम एग्जाम्स में बांट सकते हो। एग्जाम्स को तुम प्रिपरेशन डेज में बांट सकते हो, और वो प्रिपरेशन डेज में तुमको एक फीडबैक मिलता है। ये जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं फीडबैक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग तब काम करता है जब तुमको सिस्टम के बारे में चाहे कुछ ना पता हो, पर उसके हर स्टेप लेने पे तुम्हारी जो आउटपुट है पॉजिटिव जा रही है नेगेटिव जा रही है, एक फीडबैक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये, अब ये सामने भागेगा मर जाएगा, ऊपर जाएगा जंप करेगा तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली ये पहले स्टार्ट करेगा, ये सामने भाग जाएगा मजे में, मर जाएगा, रियलाइज करेगा फायदा नहीं हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ, ये आगे जाएगा इस पर कूदेगा। अब ये मशरूम निकल के आगे चला जाएगा, ये उसको पकड़ेगा नहीं, ये कूदता रहेगा, ये कहेगा अभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, फिर ये कहेगा कूदेगा, मशरूम नीचे गिर रहा होगा तो जाके मशरूम को पकड़ेगा, अब कुछ पॉजिटिव हो। तो ये जब भी मशरूम को छूना है, मतलब मशरूम निकलना है तो मशरूम को चेज करना है, ये वो सीख गया। तो बेसिकली तुम एंड पैटर्न्स करते हो और उन एंड पैटर्न्स के अंदर जो बेस्ट गिफ्ट दे रहा है तुमको, बेस्ट रिवॉर्ड दे रहा है, तुम उसको सिलेक्ट करते हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसलिए इधर कितनों ने की है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर मैं कुछ सीखता नहीं हूं। अगर मैं ट्री ट्रैवर्स कर रहा हूं और उसके अंदर मेरा एक पैटर्न 10 बार आ रहा है तो मैं 10 बार ही उसको करूंगा, मैं उसको गेस नहीं मार लूंगा पहले 3 या 4 नोट देख के कि आगे की सेम होगी। तो इंटेलिजेंस पार्ट मिसिंग होता है। तो लिटरली मैं ये बोल सकता हूँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इंटेलिजेंट डायनेमिक प्रोग्रामिंग के तरह होता है काफी हद तक। किसी को कोई डाउट इनमें से कौन सी लर्निंग कब यूज होती है? कोई भी डाउट किसी को? मैं वही कह रहा हूँ, अब
अनसुपरवाइज्ड में क्या है, समझ लो मेरे को चाहिए था कि अभी तो कंट्री और स्टेट हुई थी क्लस्टर, मैं कह रहा हूँ कि चाइना की स्टेट्स और चाइना की डिशेस एक जगह क्लस्टर हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर पूरा अनसुपरवाइज कर दूंगा तो सबको अलग अलग क्लस्टर कर देगा। तो मैं करता हूँ, मैं सेंट्रोइड डिफाइन करता हूँ। ये सेंट्रोइड क्या होगा, ये चाइनीज और एक चाइना की डिश लेके करेगा। तो अब चाइना से रिलेटेड और कोई भी स्टेट आएगी तो वो उस क्लस्टर में अपने आप चली जाएगी, क्योंकि वो बहुत सिमिलर होगी उसकी बीजिंग स्टेट से। अब फूड है, चाइनीज में हजारों फूड है, मैंने एक डिफाइन किया है बस कि ये चाइनीज क्लस्टर में आता है फूड। और कोई भी फूड आता है जो चाइनीज कल्चर से रिलेटेड है, चाइनीज गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, वो अपना क्लस्टर होता रहेगा, उसी क्लस्टर के अंदर सिमिलर होंगे वो दोनों। अब फ्रेंच क्विजीन का एक डेजर्ट और चाइनीज डेजर्ट बहुत अलग है। एक और चाइनीज डेजर्ट लेता हूँ, वो रिजेम्बलेंस इससे दिखाएगा कंपेयर टू इससे, बट मैंने इसके बारे में नहीं बताया ये एग्जैक्टली है क्या। ये अपने आप डिफरेंशिएट कर रहा है या देख रहा है कितना सिमिलर है, उसके बेसिस पे अपने आप को ये उस क्लस्टर में लेके जा रहा है। तो ये सेमी सुपरवाइज्ड है। मैंने 4 का बता दिया है और 1000 उसके हिसाब से अपने आप क्लस्टर हो गए। बेसिकली एट्रिब्यूट्स नहीं बताते आप उसमें। हाँ, एट्रिब्यूट्स मुझे नहीं पता। जस्ट गिव एन एग्जांपल। हाँ, एग्जैक्टली। एग्जांपल ऑफ दिस। I create a bucket and वो bucket को अपना सेंट्रॉइड लेके, एग्जांपल लेके, वो अपने हिसाब से उसके अंदर उसके आसपास क्लस्टर करना शुरू कर देता है। अनसुपरवाइज्ड में भी यही होता है, अनसुपरवाइज्ड में वो अपना परसेप्शन लेता बकेट बनाता है और उसमें रहता है। हाँ, इसमें हम बस एक बकेट दे देते हैं। हाँ, हम बकेट के अंदर बकेट डिफाइन कर देते हैं उसकी, तो वो उस बकेट के हिसाब से फिल इन होने लग जाता है, नहीं तो वो अपने हिसाब से फिल इन होने लग जाता है। हाँ, उतने होंगे। उसमें भी बड़े तरह के होते हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर तुम कहते हो कि कितने भी क्लस्टर बना ले, फिर होता है नहीं 7 क्लस्टर या 10 क्लस्टर बना। उसके अंदर भी होता है तुम कहते हो एक क्लस्टर है, इसको 2-3 में तोड़ दो, उसको 3-4 में तोड़ दो, वो हायरार्की क्लस्टरिंग होती है। तो उसके बड़े तरीके होते हैं, पर बेसिक फंडा सबका सेम होता है। एक दूसरे के अंदर सिमिलैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन करके देखना कि ये इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है, क्योंकि हमको कुछ एग्जैक्टली पता नहीं हमको रिजल्ट चाहिए क्या। ये 12 लाइन का कोड एक्चुअली वर्किंग न्यूरल नेटवर्क है, लिटरली 12 लाइन का कोड क्या है वो भी समझाऊंगा नहीं, वो बात के लिए। बट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था न्यूरल नेटवर्क आसान है, एक्चुअली आसान है। अभी कितना डाउट टाइम? सो एनएन न्यूरल नेटवर्क सुपरवाइज्ड में आता है। सुपरवाइज्ड में काम कैसे करता है, स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे एक्सपीरियंस से करता है। एक्सपीरियंस से क्या मतलब, वो बेसिकली एक 2 पार्ट में बैठा होता है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन। फॉरवर्ड प्रोपगेशन तुमने गैस मारा, तो पहली बार में किसी का गैस सही नहीं आएगा तो एरर आएगा, बट तुम्हारे पास सही आंसर है। याद है ना, ट्रेनिंग डेटा यही था, एक्सपीरियंस। तो तुम देखते हो कितना ज्यादा मेरा एरर था, और उस एरर के बेसिस पे तुम उसको ठीक करते हो एरर को, और ये साइकिल रिपीट करते हो जैसे ह्यूमन करता है। वो एक गलती करता है, 10 बार गलती करता है, 10 बार गलती करके समझ आता है कि ये नहीं करना चाहिए। सेम चीज, तुम एक एरर करते हो, तुम उस एरर को करेक्ट करते हो। फॉरवर्ड प्रोपगेशन थोड़ा ऐसा दिखता है, बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, पर यार लिटरली ये 4 लाइन का है। बेसिकली x1 और x2 तुम्हारे इनपुट्स हैं और कुछ रैंडम वेट इनिशियलाइज होते हैं। तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हो और इनको ऐड कर देते हो। तो ऐड करके तुम्हारे हिडन लेयर एक होती है, 3 लेयर होती है इसमें, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, हिडन लेयर। हिडन लेयर के ना तुम्हारे ये वैल्यू सारी सम अप होके आ जाती है। अब एक्टिवेशन फंक्शन तुम इधर लगाते हो, एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली होता है वेट से क्लियर है।
वेट्स की है लेयर नहीं हिडन अपने यहाँ 3 लेयर्स होती है, हाँ एक फॉरवर्ड लेयर, एक आउटपुट ये लेयर। बीच की होती है जो बेसिकली ट्रांसफर करती है, इधर से इधर जाते हुए इसके थ्रू होके जाता है। तो ये हिडन लेयर नहीं है। हिडन लेयर के तरीके अगर बोलते हैं तो एक्टिवेशन बेसिकली ये करता है। एक्टिवेशन फंक्शन सिर्फ ये बोलता है कि मेरे पास ये इनपुट्स तो आ गई, अब इनमें से कौन सी एक्टिवेट करनी है, कौन सी आगे लेके जानी है, कौन सी रोक देनी है। पर एग्जैक्टली वो नहीं होता, बहुत तरह की एक्टिवेशंस होती है। कई होती है जो स्केल करती है कि 9 और 8 थी तो मैं उसको 0.9 और 0.8 कर दूं ताकि कोई रुके ना पर उनका इफेक्ट कम होता रहे। कई होती है नहीं भाई इससे ज्यादा होगा तभी एक्टिवेट होगा, इससे कम होगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो बहुत टाइप के होते हैं, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पे होता है कि तुम क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारी। अब बैक प्रोपगेशन क्या होता है? एरर आ गया हमारे पास, हमको पता है एरर क्या है। अब एरर हमारे पास आ गया, क्या था? हमने जो एक्चुअल आंसर था और हमने जो गेस किया था उसके बीच में एरर को भी निकालने के बहुत तरीके हैं। एक्चुअल आंसर को स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रूट निकाल दो, भूल जाओ भी उसको। बेसिकली हम दोनों के गैप को एरर लेते हैं। अब इस एरर को हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट। मतलब क्या है, हम कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बोलता है गलती तो वही है पर हर एक वेट ने अलग गलती करी होगी, तो किसने कितना कंट्रीब्यूट किया उस गलती के लिए वो निकालो। नहीं तो क्या करेंगे, एक ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, एक ने बिल्कुल नहीं कंट्रीब्यूट किया, हम दोनों को सही करने बैठ जाएंगे, तो जो एक्चुअल में काफी सही होगा हम उसको गलत कर देंगे। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं हम कि हर एक कितना एरर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको हम एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या करते भी आता। अब क्या है, हम ये जो आता है आउटपुट के तेरी इतनी कंट्रीब्यूशन है एरर के अंदर, ये हम ओरिजिनल रेट से माइनस करते हैं। तो बेसिकली हम हर बार जब ये स्टेप रिपीट करते हैं तो हमारे वेट की वैल्यू जो एक्चुअल करेक्ट वैल्यू है उस तरफ शिफ्ट होती है। अब लर्निंग फंक्शन क्या है? लर्निंग फंक्शन बेसिकली है मैं कितनी जल्दी कोई चीज को एक्सेप्ट करता हूं। मतलब ऐसे एक गलती हुई 3 बार, मैं उसको अभी एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ ये चीज गलत है, या फिर मैं उसको और ट्राई देना चाहता हूं कि यार 10 बार गलती हो जाइए तब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि गलत है, क्योंकि सही है। कई बार होता है चांस से गलत हो गया। तो जब लर्निंग रेट बहुत ज्यादा होता है तो एक बॉल लेके चलो, बॉल एक बाउल के अंदर मूव हो रही है, बहुत ज्यादा तेज होगी तो वो जंप करती रहेगी बाउल के बाहर, बहुत धीरे होगी तो बाउल के अंदर धीरे धीरे जाएगी और जहां भी आएगा थोड़ा भी स्टेबल पॉइंट तो रुक जाएगी। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? हमको बी में जाना है और हम ए से शुरू हो रहे हैं। अगर हम बहुत तेज जा रहे हैं तो हम इधर बहुत तेज जाते हुए सी से प्रॉब्ली जंप कर जाएंगे, इधर एक्चुअल आंसर पे नहीं आए हम। बहुत स्लो जाते हैं तो हम ए से बी में आके बी में रुक जाएंगे। बी इसको लगेगा सही आंसर है, बी सही आंसर नहीं है, डी है, पर ये कभी इसके ऊपर आ नहीं पाएगा। तो लर्निंग रेट बेसिकली हमको इस तरह रखना होता है, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, इतना कि एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ गलतियों के बाद हम सही आंसर में आ पाए। तो हमको मीडियम स्पीड रखनी होती है वेट टर्म से बोलूं तो, कि हम सी के ऊपर से तो क्रॉस कर ले पर डी के पाथ को हम बाहर न निकले। ये क्लास पार्ट है, इसको जरा समझाऊंगा नहीं, ये आगे फ्यूचर के लिए।
बट बेसिकली न्यूरल नेटवर्क से दो चीजें होती हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन कंटिन्यूअस चीज होती है, क्लासिफिकेशन डिस्टिंक्ट चीज होती है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अब मैं बोलता हूं कि 6 to 4 पे मेरी क्या वैल्यू होगी, तो वो कंटिन्यूअस होगी। मतलब अगर मैं इनके पॉइंट चेंज करता हूं तो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आती रहेगी, कंटिन्यूअसली आती रहेगी। मैं इसको n नंबर ऑफ क्लासेस में नहीं डाल सकता। 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स आ सकते हैं, मैं उनके लिए क्लासेस नहीं बना सकता। बट अगर मैं बोलता हूं कि एक्सपेंसिव, ये घर का समझ लो है चार्ट, और मैं कहता हूं इसके ऊपर वाले एक्सपेंसिव है, इसके नीचे वाले नॉन एक्सपेंसिव है। अब मैं इसको डेफिनेट नंबर ऑफ क्लासेस में तोड़ सकता हूं अपने रिजल्ट को। तो इस जब तुम डेफिनेट नंबर ऑफ क्लासेस में तोड़ सकते हो तब तुम क्लासिफिकेशन बोलते हो। जब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, मतलब इनडेफिनेट क्लासेस हैं, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। अब किसी को कोई डाउट, कुछ भी समझ ना आया, कुछ भी समझना हो, बात क्या नहीं समझ वो क्या है? तूने गलती करी, ठीक है। सवाल क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट किया, ठीक है, असाइनमेंट गलत था, ठीक है, तो तेरा ओवरऑल आंसर गलत आया, तेरे वेट्स थे वो स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब तूने ये देखा कि मेरी सही आंसर ये था, गलती ये थी, अब तू गलती पकड़ते कि ये गलती थी। अब तू सबको तो नहीं बोल सकता ना तुमने गलती करी है, किसी ने बिल्कुल सही काम किया होगा, किसने गलत किया होगा। तो पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन करके बेसिकली ये एरर है, तुमने कितना कंट्रीब्यूट किया एरर के अंदर, मतलब तुम्हारी कितनी गलती थी, तुम्हारी कितनी गलती, तुम्हारी कितनी गलती थी। जिसकी बहुत ज्यादा गलती होगी उसको बहुत ज्यादा ठीक करेगी टीचर कि तूने बहुत गलत किया है, तो उसको 10 बार प्रैक्टिस कर। जिसकी बहुत कम गलती होगी उसको बोलेगी छोड़, तू रहने दे। ये बैक प्रोपगेशन, ठीक है। तो बेसिकली एरर जो आते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन थी और उसको उतना ठीक करना। किसी को कोई भी डाउट, मशीन लर्निंग में कोई भी लैंग्वेजेस वगैरह की यूज होता है यार ओके, इसका शॉर्ट आंसर नहीं है मेरे पास। अगर शॉर्ट में देना चाहूँ तो कुछ लैंग्वेज है जो ऑप्टिमाइज्ड है, जिनके अंदर पहले से बहुत काम हो रखा है, बहुत सपोर्ट है। जैसे कि मशीन लर्निंग के अंदर तुमको बहुत हेवी कंप्यूटेशन करनी होती है, तो तुमको एनवीडिया के जीपीयूज यूज करने होते हैं जो कि क्यूडा पे चलते हैं। अब क्यूडा का सपोर्ट हर लैंग्वेज में नहीं है, सी के अंदर है, मेन सपोर्ट पाइथन के अंदर है, और पाइथन के कारण थोड़ी और लैंग्वेज में है, बट मेनली इन दोनों के अंदर है। तो हम पाइथन से यूज करें तो वो दिन सफिशिएंट। पाइथन लिटरली वो सब कर सकते हैं जो बाकी लैंग्वेजेस कर सकती है। मेरे कोड की एग्जीक्यूशन टाइम 40 नैनोसेकंड्स है। सी का जो कोड है, टाइमर होता है सी का, वो भी उसको नहीं पकड़ पाता। तो मेरे को स्टार्टिंग में लोग बोलते थे पाइथन बहुत स्लो लैंग्वेज है इसलिए मत करो, जावा फास्ट है, सी फास्टर है। बट वो इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम है, ना कि एक लैंग्वेज की डायरेक्ट प्रॉब्लम है। लोगों ने बहुत काम किया हुआ है, बहुत ऑप्टिमाइज चीजें करी हुई है, अपने को कितना अपडेट रखते हो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ लैंग्वेजेस जैसे जावा वगैरह वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, मतलब उनमें काम किया हुआ है पर उन पे नया काम बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। जो नई फील्ड सारी है वो उनके अंदर नहीं आ रही, तो वो उस जगह थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बट पाइथन ओवरऑल मेरे ख्याल से फुल फ्लेज लैंग्वेज है। उसके बाद अगर सिर्फ नंबर क्रंचिंग में जाना है तो आई गेस आर बी सफिशिएंट। फॉरवर्ड प्रॉप होता है, मैंने चलो मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, अच्छा मैं अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ। टीचर्स है, तुमको बोलती है कि एग्जाम में यही आएगा, यही पढ़ के जाओ। 5 टीचर्स है, तुम स्टार्टिंग में सबको इक्वल वेटेज देती हो कि सब सही बोल रही होंगी। एग्जाम होता है, एग्जाम में पेपर आता है बिल्कुल गलत आता है। अब तुमने गेस किया कि पेपर वही आएगा, पर गेस गलत थी। तो जो वेट्स है वो बेसिकली था तुमको कितना भरोसा था उस टीचर पे।
अब बैक प्रोपगेशन